Welcome, friends, in today's session of the subject called Elements of Banking and Insurance for the students of FIBCom Semester 2. We are going to start a new chapter today, friends, and the name of the chapter is Bank Accounts. And from that, we are going to have the question what type of questions are asked. Depending on that, we will have the discussion. So let us today try to discuss one of the important bank account, that is current account, in detail. We are going to discuss this particular topic. State the meaning, characteristics and special benefits of current account. So we are going to focus on current account today. Overall detail of current account we are going to cover in today's session. It is a type of account that is opened by bank, and what are its benefits, what are its characteristics, what exactly is current account is what we are going to discuss in today's session. So deposits are the main source of funds. Let's have the introduction. Deposits are the main source of funds for commercial banks, which play a vital role in economic development of the country through their assistance towards trade, commerce, industry, and agriculture. One of the main functions of the commercial banks is to accept deposits of various types on different terms and conditions. And the deposits accepted by the banks may be categorized in the following types. That is what we are going to see in the next slide. Now, what is the main function of bank? We know very well what is the main function of the bank is to accept the deposits. बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, लेकिन डिपॉजिट एक्सेप्टेंस करने के बाद बैंक करती क्या है? व्हाट एग्जैक्टली बैंक डू? डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के बाद ये जो कैश एक्सेप्ट किए, फंड्स जो एक्सेप्ट किए, क्या तिजोरी में डाल देगी, लॉकर में डाल देगी? नहीं सर, इसे रोटेट करना है इकोनॉमी के अंदर विद द हेल्प ऑफ बाय प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस टू द नीडी पर्सन. तो ये सर्कुलेशन ऑफ मनी, सर्कुलेशन ऑफ फंड, सर्कुलेशन ऑफ डिपॉजिट होना चाहिए सर. सिर्फ एक्सेप्टेंस करने से काम नहीं चलेगा, उसको फिर उसकी लैंडिंग एक्टिविटी भी करनी है, एडवांसिंग एक्टिविटी भी करनी है बैंक को, तो ही होगा ना सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और अल्टीमेटली द बैंक tries to provide funds towards trade, commerce, industries and agriculture sector. Now in what categories the deposits are accepted by the banks? So let us try to understand what are the kinds of deposits. See, there are different types of deposits and there are different types of bank accounts. Don't get confused in that. Kinds of deposit यानी कि types of deposit अलग बात हो गई, और टाइप्स या काइंड्स ऑफ बैंक अकाउंट्स अलग बात होगी. तो दोनों का मिक्सिंग नहीं कर देना है. तो थोड़ा समझते हैं. डिपॉजिट्स इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, और वी कैन से वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स. सो डिपॉजिट्स इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, वो समझने की कोशिश करते हैं. तो टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अगर आपको पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स. नंबर वन, डिमांड डिपॉजिट्स. नंबर टू, टर्म डिपॉजिट्स. So there are two types of deposits, demand deposits and term deposits. What are demand deposits? Demand deposits are those deposits which can be withdrawn by the customer on demand. On demand without notice. So demand deposits are those deposits which can be withdrawn by the customers on demand without notice. ये इसकी एग्जांपल्स क्या होती है सर? डिमांड डिपॉजिट्स एग्जैक्टली क्या होती है सर? करंट डिपॉजिट्स, सेविंग डिपॉजिट्स, कॉल डिपॉजिट्स. आपने कोई पहले से एडवांस नोटिस नहीं देनी है कि कल मैं पैसे लेने आ रहा हूँ, पैसे रेडी रखना. आप अपने हिसाब से जो भी बैंक का टाइमिंग है उस टाइम के अंदर जाके कभी भी डिमांड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके बैंक में बैंक बैलेंस में उतना बैलेंस होना चाहिए, बैंक अकाउंट में उतना बैलेंस होना चाहिए. मान लीजिए आपका सेविंग अकाउंट है और वहाँ आपने सेविंग डिपॉजिट डाली हुई है 50,000 की, और आपको 40,000 की रिक्वायरमेंट है, तो आपने कोई एडवांस में नोटिस नहीं देनी है कि कल मैं आऊँगा 40,000 ले तैयार रखना. आप बिजनेस आवर्स होते हैं वहाँ जाके आप डिमांड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जितना बैलेंस आपका है उस बैलेंस से ज़्यादा बैलेंस आप डिमांड नहीं कर सकते. 50,000 बैलेंस है तो उसमें से उस लिमिट के अंदर आप डिमांड कर सकते हो.
तो डिमांड डिपॉजिट उससे कहते हैं सर। करंट डिपॉजिट्स एंड इसकी तीन कैटेगरी है, इसके अंदर तीन चीजों का समावेश होता है, करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट एंड कॉल डिपॉजिट। द करंट डिपॉजिट्स एंड सेविंग डिपॉजिट्स आर बोथ फ्रॉम द customers of the bank are obtained from the customers of the bank and the call deposits are accepted from the fellow bankers। करंट और सेविंग डिपॉजिट्स कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं सर? बैंक के कस्टमर्स के पास से ही प्राप्त किए जाते हैं। कॉल डिपॉजिट्स कहाँ से होगा सर? इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एक बैंक दूसरे बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लेती है, एक तरीके से यहाँ जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी रिक्वायरमेंट लेती है। यहाँ पे कॉल डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम द फेलो बैंक्स, यानी दूसरी बैंक से भी कॉल डिपॉजिट्स मांगी जा सकती है, एक्सेप्ट की जा सकती है, यानी बैंक एक दूसरे को हेल्प करती है एक तरीके से, यूँ कह सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया डिमांड डिपॉजिट की चर्चा। अब चलते हैं टर्म डिपॉजिट्स पे। व्हाट आर टर्म डिपॉजिट्स? टर्म डिपॉजिट्स, टर्म से ही आपको पता चल रहा है कि जहाँ ड्यूरेशन फिक्स होगा। टर्म का मीनिंग ही होता है ड्यूरेशन, समय, पीरियड। टर्म डिपॉजिट्स आर फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स। इसकी जो दो कैटेगरी है डिपॉजिट्स की, यहाँ दो है, ऊपर डिमांड में तीन थी, करंट, फिक्स्ड, करंट, सेविंग एंड कॉल, और यहाँ पे दो है, फिक्स्ड एंड रिकरिंग। So there are two types of term deposits, fixed deposits and recurring deposits। चलिए, तो fixed deposits and recurring deposits। The term deposits are those which are not repayable on demand। यहाँ कोई डिमांड करने की जरूरत नहीं। आपकी जैसे ही टाइम पीरियड कंप्लीट होगी, आप ऑटोमेटिकली आप बैंक में जाएंगे, आपने यहाँ पे भी एडवांस नोटिस देने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरी एफडी पक गई है, मैच्योर हो गई है, मैं कल आऊंगा, पैसे रेडी रखना। बैंक को पता ही है कि आपकी एफडी पक गई है, मैच्योर हो चुकी है, ड्यू हो चुकी है, आप कभी भी आ सकते हैं, तो उतनी डिपॉजिट का एश्योरेंस बैंक ने करके रखना है। सच डिपॉजिट्स आर रीपेबल आफ्टर अ फिक्स डेट और फिक्स पीरियड ऑफ नोटिस। आपने 5 साल का एफडी करवाया है, तो 5 साल के बाद, यानी 5 साल का जो अवधि है, जो समय है, ड्यूरेशन कंप्लीट होगा, अगले दिन आप वो जाके वहाँ डिमांड कर सकते हैं। लेकिन डिमांड करना कंपलसरी नहीं है यहाँ पे, नॉट नॉट कंपलसरी, नॉट रीपेबल ऑन डिमांड। ठीक है, आपने सिर्फ एफडी प्रेजेंट कर देनी है और आपकी सिग्नेचर कर देनी है एफडी के पीछे, और आपने जो इंस्ट्रक्शन देनी बैंक ने फॉलो करनी। क्या आपने इस एफडी को रिन्यूअल करनी है, फिर से इसको एफडी में डालना है या डिपॉजिट को, यहाँ आपको उसकी कैश चाहिए, यहाँ अकाउंट में ट्रांसफर करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो आपने दे देनी है बैंक को। अब आते हैं, ये हो गई हमारी चर्चा टाइप्स ऑफ डिपॉजिट की। अब आ रही है टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, या बैंक अकाउंट भी कह सकते हैं। अब कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। द बैंक कलेक्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक विच बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज। अब बैंक के पास भी वैरायटी ऑफ कस्टमर्स आते हैं, क्लास ऑफ पीपल आते हैं। एक ही क्लास के पीपल थोड़ी होंगे भाई, चलो गरीब बंदा है तो गरीब बंदे ही आते रहेंगे बैंक में, ऐसा नहीं होगा, वैरायटी आएगी। वेरी रिच पीपल आएंगे, रिच पीपल आएंगे, मिडिल क्लास वाला बंदा होगा, बिजनेसमैन होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, सर्विस वाला बंदा होगा, हमारे जैसा सर्विस ग्रुप में से होगा, नौकरी करने वाला बंदा, ट्रस्टी हो सकता है, क्लब हो सकता है, या अन्य कोई संस्था हो सकती है, एनजीओ हो सकती है, वगैरह वगैरह। गरीब लोग भी हो सकते हैं, यानी पुअर पीपल भी हो सकते हैं। तो ये कैटेगरीज ऑफ पीपल आपको यहाँ दिखी, जो अपनी डिपॉजिट जमा करेंगे बैंक में और बैंक ये कलेक्ट करेगी। बैंक का काम ही कलेक्शन, टू कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, बैंक का मेन फंक्शन ही है। इन एनी टाइप ऑफ बैंक द अकाउंट इज ओपन विद अ सर्टेन टाइप ऑफ डिपॉजिट। कोई भी बैंक में आप जाएंगे, आपने अकाउंट खुलवाना है तो आपने कुछ ना कुछ डिपॉजिट डालनी होगी। खैर कुछ बैंक्स अगर बल्क में कोई इंस्टीट्यूट अकाउंट ओपन करती है, मान लीजिए एक संस्था है, कंपनी है, और कंपनी के सारे एम्प्लॉयज का अकाउंट ओपन करना है एक बैंक में, तो वहाँ कंपनी ऐसी शर्त रख सकती है कि भाई जीरो डिपॉजिट या जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना है, तो वहाँ ऐसी सुविधा बैंक दे सकती है अगर बल्क में अकाउंट ओपन करते हैं तो। बट नॉर्मली मान लीजिए आपने अपना अकाउंट खुलवाना है, सेविंग अकाउंट खुलवाना है मान लीजिए, तो वहाँ आपने मिनिमम डिपॉजिट आपने जमा करवानी होगी, मिनिमम बैलेंस रखना होगा अकाउंट ओपन करते वक्त। तो नॉर्मली क्या प्रथा है वो देखते हैं। इन एनी टाइप ऑफ बैंक द अकाउंट इज ओपन विद अ सर्टेन टाइप ऑफ डिपॉजिट। कुछ ना कुछ डिपॉजिट की अकाउंट अमाउंट आपने डालनी होगी उस अकाउंट के अंदर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इन
ओपनिंग सेविंग्स अकाउंट विदाउट चेक सिस्टम। अब सेविंग अकाउंट दो तरीके से खुलता है कि आपने सेविंग अकाउंट चेकबुक के साथ खोलना है या विदाउट चेक सिस्टम के साथ खोलना है। आज के ज़माने में नॉर्मली चेकबुक के साथ ही चेक सिस्टम वाला ही सिस्टम फॉलो किया जाता है। ये पहले के ज़माने में होता था ज़्यादातर कि भाई विदाउट चेक सिस्टम ओपन करना है। आज के ज़माने में ऐसा हार्डली 100 में से 2 या 1 व्यक्ति ऐसी होगी कि वो बोलेगा भाई मुझे चेकबुक नहीं चाहिए, मेरा सिर्फ अकाउंट खोल दीजिए आप। तो हार्डली ऐसा होता है। तो जिसके पास चेक जिसको चेक की ज़रूरत नहीं होगी वो चेक सिस्टम के हिसाब से नहीं चलेगा, वो सिंपल अकाउंट सेविंग अकाउंट खुलवाना है बस। तो वहाँ नॉर्मली 500 डिपॉजिट ली जाती है। और अगर आप सेविंग अकाउंट विद चेक सिस्टम के फॉलो करते हैं तो वहाँ कितनी डिपॉजिट ली जाएगी सर? 1000 रुपीज़ की डिपॉजिट ली जाएगी, यानी मिनिमम डिपॉजिट होगी होगी। हर बैंक का अपना हिसाब किताब होगा, कुछ 1000 लेंगे, कुछ 3000 लेंगे। और जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक है जैसे आईसीआईसीआई बैंक है तो वो तो 10,000 की मिनिमम डिपॉजिट मांगती है। तो अपने बैंक्स के अपने रूल है और वो उसके हिसाब से आपसे डिपॉजिट लेंगे। सो दिस ओपनिंग अमाउंट इज टू बी केप्ट एज फिक्स्ड बैलेंस। ये फिक्स रहेगा, आप इसको यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए 1000 रुपीज की डिमांड की गई है कि आपने 1000 रुपीज भर के अपना अकाउंट खुलवाना है तो 1000 को आपने हाथ नहीं लगाना, वो फिक्स रहेगा। उतना बैलेंस आपने मिनिमम मेंटेन करना है उस अकाउंट के अंदर। So for all the accounts, you have to keep some minimum balance in the account as a fixed amount. Hence, any type of account with the bank is called deposit account. तो इस प्रकार के अकाउंट को आप क्या कहेंगे सर? डिपॉजिट अकाउंट कहेंगे। यहाँ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो गया आपका फिक्स्ड, ये सेविंग डिपॉजिट अकाउंट हो गया। एक्चुअली ये सेविंग अकाउंट की बात करें तो ये सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, तो ये उसका एग्जाम्पल था। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के अकाउंट्स होते हैं बैंक के अंदर। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक कस्टमर्स। ये जो बेसिक है मैंने वो कवर किया है, बेसिक्स जो अकाउंट होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अकाउंट होते हैं, पर एज पर योर सिलेबस कुछ बेसिक्स अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तो उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। द फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स विच आर एज फॉलोज: करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट एंड एनआरआई अकाउंट, यानी कि नॉन रेसिडेंट अकाउंट। ये 5 बेसिक। इसके अलावा भी और बहुत सारे अकाउंट होते हैं: ओवरड्राफ्ट अकाउंट, लोन अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। तो इस तरीके के और अकाउंट्स भी होते हैं। तो हमारे सिलेबस के हिसाब से जो माइनर अकाउंट भी होता है, हमारे सिलेबस के हिसाब से जो है बेसिक जो है उसकी चर्चा करेंगे। अब हम फोकस करेंगे करंट अकाउंट पे कि करंट अकाउंट एग्जैक्टली क्या है, ये कौन सी व्यक्ति करंट अकाउंट खुलवाती है, करंट अकाउंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, करंट अकाउंट क्यों खुलवाना चाहिए, ये सारी चर्चा अब हम करेंगे। तो करंट अकाउंट सर, व्हाट एग्जैक्टली इज करंट अकाउंट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट अकाउंट, ये समझने की कोशिश करते हैं। बिजनेसमैन नॉर्मली ओपन सच अ करंट अकाउंट इन द बैंक looking to the convenience of the payment and receipt of the money in their trades or business. In such current accounts, we can deposit or withdraw money on any day without restrictions subject to the balance in the account. करंट अकाउंट का मेन एडवांटेज ही ये। करंट अकाउंट नॉर्मली कौन ओपन करता है सर? बिजनेसमैन ओपन करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, ट्रेडर्स, बिजनेस, मे बी अ स्मॉल बिजनेसमैन, मे बी अ जाइंट बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन। तो नॉर्मली ये लोग करंट अकाउंट ओपन करते हैं अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को स्मूथली, कन्वीनियंटली कंडक्ट करने के लिए। नॉर्मली चेक सिस्टम यूज किया जाता है पेमेंट करने के लिए। ट्रेडर्स और बिजनेसमैन चेक सिस्टम फॉलो करते हैं, यानी करंट अकाउंट एक ओपन करके क्या कर सकते हैं सर? दे कैन डिपॉजिट द कैश। मान लीजिए आज के दिन एक बिजनेसमैन के पास 2 लाख की कैश आई, तो मान लीजिए अगर उसने पेमेंट रिसीव किया है 2 लाख की कैश, तो क्या कैश उसको वो शॉप पे रख के जाएगा या घर ले जाएगा? नहीं सर, एक काम करते हैं, चलो बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर आपका कोई बिजनेस अकाउंट है, करंट अकाउंट को बिजनेस अकाउंट भी कहते हैं, तो कोई बिजनेस अकाउंट है आपका तो आप उसमें डिपॉजिट कर दीजिए। उतना ही रिस्क आपका कम हो जाएगा। कैश लेके जाना, हैंडल करना रिस्की है। टू कीप कैश विथ अस इट इज़ अ रिस्की थिंग। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मान लीजिए किसी को पेमेंट करनी है तो आप अपने अकाउंट में डाल दीजिए, फिर उसको चेक दे दीजिए, बेटर है।
विड्रॉ करना हो, कभी आपने किसी पार्टी को पेमेंट देना है और आप बैंक में जाके जाके विड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 2 लाख डिपॉजिट किया और 2 3 4 दिन बाद आपने किसी को पेमेंट करनी है और पार्टी कह रही है मुझे कैश चाहिए, तो फिर आपने जाके विड्रॉ करके वो बंदे को दे देना है कैश। या आप उनको चाहे तो बैरर चेक दे सकते हैं, वो अपने आप जाके विड्रॉ कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी यहाँ डिपॉजिट्स और विड्रॉल ऑफ मनी इजी हो जाता है और इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि आप भाई 2 लाख से ज़्यादा की कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते, 5 लाख से ज़्यादा की कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, कोई लिमिट लिमिट भी नहीं है इसके अंदर। करंट अकाउंट में आप करोड़ों रुपए डाल सकते हैं। आपका बिजनेस अकाउंट है और बिजनेस के एंट्री कितने भी अमाउंट की हो सकती है, तो इस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। करंट अकाउंट का नाम ही बिजनेस अकाउंट है, तो बिजनेस करने के लिए आप तो करोड़ों का भी ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो देर इज नो लिमिट, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन। When the banker accepts deposits on current account, he incurs an obligation to honor all checks drawn by the customer against him as long as there is enough money to the credit of the customers. अगर आपके बैंक अकाउंट में इनफ कैश पड़ा है और आप किसी पार्टी को चेक दे रहे हैं, थर्ड पार्टी को, तो उसका पेमेंट करने की जिम्मेदारी बैंक की है। बैंक की जिम्मेदारी बन जाती है वो उस रकम की, उस चेक की एक्सेप्टेंस करनी है और उसका पेमेंट करना है। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंकर। लेकिन आपके अकाउंट में उतना बैलेंस होना चाहिए तो ही बैंक पे कर पाएगी। अब मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख है और आपने 5 लाख का चेक दे दिया है, तो बैंक कैसे एक्सेप्ट करेगी उस चेक को? उसे तो डिसऑनर करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपके अकाउंट में उतनी क्रेडिट पड़ी हुई है, क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि उतनी रकम जमा पड़ी है, तो ही बैंक उतनी रकम का चेक एक्सेप्ट कर पाएगी और पेमेंट कर पाएगी। इन सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस द बैंकर ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है, एक तरीके से शॉर्ट टर्म लोन होता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? बैंक प्रोवाइड्स दिस फैसिलिटी, एक्स्ट्रा फैसिलिटी विद द विद द हेल्प ऑफ करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट है तो साथ साथ में आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिल सकता है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट भी ओपन हो सकता है। कभी कभी कुछ फंड शॉर्ट पड़ रहा है आपके अकाउंट में, मान लीजिए आपने किसी पार्टी को 2 लाख का चेक दिया है और आपके अकाउंट में 1,80,000 पड़े हैं, तो 20,000 का शॉर्ट हो रहा है, तो वो 20,000 की पेमेंट बैंक कर देगी आपके लिए और आपके ओवरड्राफ्ट में 20,000 बता रहा होगा डेबिट बैलेंस, यानी बैंक ने आपको लोन दी हुई है। 20,000 की शॉर्ट टर्म लोन दी है जो आपने फ्यूचर में पे कर देनी है। आप जितनी जल्दी पे कर देंगे आपको ब्याज कम पे करना पड़ेगा। सो करंट अकाउंट्स आर ऑल्सो नोन एज डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। बिजनेस अकाउंट भी कह सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट, आप डिमांड करेंगे तब आपको मिलेगी अमाउंट, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। करंट अकाउंट रिलेट्स टू द रेगुलेटरी ऑफ ट्रांजेक्शंस इन द अकाउंट विद इन बैंकिंग आवर्स ऑन ऑल वर्किंग डेज। बैंकिंग आवर्स में जाके आपने डिमांड करना है। रात को 12 बजे नहीं जाना है पेमेंट लेने के लिए। जो भी टाइमिंग है बैंकिंग आवर्स से, उस बैंकिंग आवर्स में, ऑफिशियल आवर्स में आपने जाके डिमांड करनी है। जैसे नॉर्मली टाइमिंग होता है 11 से 4, तो 11 से 4 के बीच में आपने जाके डिमांड करनी है पेमेंट की। और छुट्टियों के दिन भी नहीं जानी है। अगर डुलेटी है तो घर पे बैठ के होली खेलना है, उस दिन भी नहीं जाना, चले जाना है बैंक में, नहीं बैंक खुली होगी मेरे लिए स्पेशली, नहीं खुली तो मैं खुलवाऊंगा। ये स्पेशल फैसिलिटी हॉलीडे, वर्किंग हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे के दिन नहीं मिलती है, वर्किंग डे और वर्किंग आवर्स में आपको ये बेनिफिट मिलता है, ध्यान रखिएगा। So hence, current account is an active and running account which may be operated any number of types during the working day। आप एक ही दिन में जाके 2 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 4 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सबसे एक्टिव अकाउंट माना जाता है, रनिंग अकाउंट माना जाता है, इसमें ट्रांजेक्शन होते ही होते हैं कस्टमर के। करंट अकाउंट जो होता है एक्टिव अकाउंट होता है, इनएक्टिव नहीं होता है। सेविंग अकाउंट कैसा होता है सर? आप आज आपने ट्रांजेक्शन किया, 3 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद आपको याद आता है मैंने एक सेविंग अकाउंट खुलवाया था, चलो एक दो ट्रांजेक्शन कर लूँ, 2 4 हज़ार 5 हज़ार की सेविंग हुई है, जमा कर दूँ। करंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। ये ज्यादातर डेली ट्रांजेक्शन होते हैं, या 2 3 दिन में एक ट्रांजेक्शन होता है, या हफ्ते में एक ट्रांजेक्शन तो होता ही होता है। देर इज नो restrictions on the number and the amount of withdrawals from the current account। ये हम चर्चा कर चुके हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप जितनी रकम डालना चाहे डाल सकते हैं, जितने बार ट्रांजेक्शन करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिपॉजिट करें, विड्रॉवल करें, कोई लिमिट नहीं है। Hence, current account deposit is known as banker's demand liability
बैंक के लिए लायबिलिटी है। आप कैश जाके पे कर रहे हो, अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हो, कभी भी जब आप डिमांड करोगे तो बैंक की लायबिलिटी बनती है, वो आपको पे करेगी। तो बैंक के लिए लायबिलिटी है, हमारे लिए एसेट है, ध्यान रखना। इट इज एसेट फॉर अस, हमारी डिपॉजिट है। हमने कैश पे की है, हमने चेक डाला है, वो हमारी एसेट है, बैंक के लिए लायबिलिटी है। एंड इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस लायबिलिटी ही हैज टू कीप सफिशिएंट कैश रेडी एवरी मोमेंट। हाँ, बैंक की जिम्मेदारी है कि वो अपने पास उतना कैश रखे। उनकी भी फोरकास्टिंग होती है कि आज के दिन में मान लीजिए बैंक को भाई 1 करोड़ की जरूरत पड़ने वाली है पूरे दिन में, तो 1 करोड़ की प्रोविजन बैंक में करनी चाहिए। और बैंक नॉर्मली ऐसा करती है, इमरजेंसी फंड भी रखती है, थोड़े और एक्स्ट्रा फंड भी रखती है कि ताकि कभी अनएक्सपेक्टेड कोई आ जाए कैश विड्रॉ करने के लिए, तो बैंक के पास उतनी ही कैश होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द बैंक्स यूजुअली डू नॉट पे इंटरेस्ट ऑन करंट डिपॉजिट्स। करंट डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। ये बिजनेस अकाउंट है, ये सेविंग अकाउंट नहीं है। सेविंग अकाउंट में ब्याज मिलता है, करंट अकाउंट में ब्याज नहीं मिलता है नॉर्मली। If the customer keeps a huge balance in his current account, then he is paid a nominal rate of interest. लेकिन कोई ऐसी पार्टी हो बैंक में जाके ऐसी बात करे, थोड़ा नेगोशिएट करे कि भाई मेरा करोड़ों का बैलेंस आपके बैंक में पड़ा रहेगा करंट अकाउंट में, लेकिन आपने थोड़ा ब्याज मुझे देना होगा, तो ऐसा ट्रांजेक्शन हो सकता है। करोड़ों की बैलेंस पड़ी हो तो हो सकता है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर स्पेशल कस्टमर को देना हो बैंक, तो बैंक दे सकती है। बैंक पर डिपेंड करता है। बैंक्स ऑल्सो इंसिस्ट दैट देयर शुड बी केप्ट सम मिनिमम बैलेंस इन द करंट अकाउंट। वो हमने देखा, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। इफ अ कस्टमर डज नॉट कीप द मिनिमम बैलेंस देन टू रन द अकाउंट अ सर्विस चार्ज इज रिकवर्ड एनुअली फ्रॉम द अकाउंट होल्डर। मान लीजिए आपने एक बैंक के अंदर अकाउंट खोला और वो बैंक कहता है कि आपने मिनिमम 5,000 का बैलेंस मेंटेन करना है करंट अकाउंट में। अगर आप 5,000 का बैलेंस मेंटेन नहीं करोगे तो क्या? तो अगर मान लीजिए आप 5,000 का बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं, कभी 3,000 हो, कभी 2,000 हो, ऐसा बैलेंस आप मेंटेन कर रहे हैं, तो वहां पे आपको चार्ज लग जाएगा और वो रिकवरी बैंक आपके अकाउंट में से करेगी, माइनस करती जाएगी। इसलिए वहां आपको लॉस हो सकता है। यानी मिनिमम अकाउंट में जो बैलेंस की डिमांड की गई है वो मिनिमम बैलेंस आपने जरूर मेंटेन करना चाहिए। सो द करंट अकाउंट इज ओपन एंड ऑपरेटेड। अब यहाँ जो अब हम चर्चा करने वाले हैं, नॉर्मली हु ओपन्स, शायद आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए, हु ओपन्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कौन ओपन करता है? करंट अकाउंट की बेनिफिट कौन लेता है? हु ओपन्स करंट अकाउंट? विच आर द पर्सन्स हु ओपन करंट अकाउंट्स? The current account is opened and operated by big businessmen, joint stock companies, institutions, corporations, industrialists, traders, etc. ये लोग हैं जो करंट अकाउंट ओपन करते हैं। इंडिविजुअल पर्सन करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। हाँ, अगर सिंगल बिजनेसमैन हो और वो एक छोटी सी शॉप चला रहा है अपने नाम की, तो वहाँ वो कर सकता है, लेकिन वो शॉप के नाम की ही अकाउंट होगा। आपका जो शॉप होगा, मान लीजिए प्रोविजन स्टोर है, तो उस प्रोविजन स्टोर के नाम का अकाउंट होगा, उसके नाम का अकाउंट नहीं हो सकता है। मान लीजिए प्रोविजन स्टोर का नाम रखा गया है चामुंडा स्टोर्स, तो चामुंडा स्टोर का जो ओनर होगा, जो मालिक होगा, जो प्रोपराइटर कहते हैं, एग्जैक्टली प्रोपराइटर जो होगा, वो प्रोपराइटर मान लीजिए मिस्टर जगदीश शर्मा है, तो जगदीश शर्मा के नाम का करंट अकाउंट नहीं खुलेगा दोस्तों। जगदीश शर्मा की जो शॉप है, जो शॉप चला रहा है, उसके नाम का अकाउंट खुलेगा, दैट इज करंट अकाउंट। यहाँ ये समझना जरूरी है। कोई इंडिविजुअल पर्सन का करंट अकाउंट नहीं हो सकता है दोस्तों। कोई कंपनी के नाम का होगा, कोई इंस्टीट्यूशन के नाम का होगा, कोई कॉरपोरेशन हो सकता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, इस तरीके के होंगे सर। तो चामुंडा स्टोर्स, इस तरीके से अकाउंट का ओपनिंग होगा। यहाँ मैंने एग्जांपल दिया आपको। और इनकी कैपिटल होगी पॉजेस ह्यूज वर्किंग कैपिटल। अगर कोई कंपनी होगी, बड़ी कंपनी होगी, तो उनका वर्किंग कैपिटल होगा। छोटी फर्म होगी तो उनका भी कैपिटल होगा, वर्किंग कैपिटल छोटा होगा। तो इन लोगों को बेनिफिट मिलता है करंट अकाउंट का। द पर्सन हु हैज करंट वर्किंग कैपिटल जिनके पास हो, उनको ये बेनिफिट मिलता है, दे कैन ओपन करंट अकाउंट। हैव एन इंटरेस्ट इन कीपिंग मनी सेफ। मनी सेफ रहती है। आपको मैंने जैसा एग्जांपल दिया था कि आपको कोई बंदा आके 2 लाख रुपए दे के गया है, तो घर पे रखना रिस्की है, शॉप पे रखना रिस्की है, तो एक काम करते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। अगर आप बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं तो सेफ मनी हो जाता है।
हैव अ फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शंस इन द बैंक विद द बैंकर डेली। फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शंस होने चाहिए। डेली ट्रांजेक्शंस होंगे, 2-3 दिन में एक ट्रांजेक्शन होगा, हफ्ते में एक ट्रांजेक्शन होगा, मंथली 1-2 ट्रांजेक्शंस तो कम से कम होने चाहिए, तो ही वो करंट अकाउंट माना जाता है नॉर्मली। तो जहाँ फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शंस हो वहाँ आप करंट अकाउंट का फायदा ले सकते हैं। रिसीव एंड मेक पेमेंट्स थ्रू चेक्स, चेक का आप उपयोग करते होंगे और वो नॉर्मली किया जाता है। करंट अकाउंट में से सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है पेमेंट करने के लिए वो चेक्स है। चेकबुक सबसे इम्पोर्टेंट होती है। 100 चेकबुक, नंबर ऑफ चेक्स, 100 नंबर ऑफ चेक्स की पूरी थप्पी दे दी जाती है। पूरा चेक लीफलेट दे दिया जाता है कि आप यूज़ करते रहिएगा। जब ये 100 खत्म होगी तब आपको दूसरी एक और चेकबुक इशू की जाएगी। इस तरीके से सेविंग अकाउंट में छोटी लीफलेट होती है, 10 से 20 नंबर ऑफ चेक्स की लीफलेट, क्योंकि कम यूज़ होता है। करंट अकाउंट में ज़्यादा यूज़ होता है, तो वहाँ नंबर ऑफ चेक्स जो ज़्यादा होते हैं। एंड एंगेज्ड इन लार्ज स्केल बिजनेस एक्टिविटी, ज़्यादातर जो होता है लार्ज स्केल बिजनेस एक्टिविटी वाले करंट अकाउंट ओपन करने की कोशिश करते हैं और वो मेंटेन भी करते हैं अच्छे से। स्मॉल बिजनेसमैन भी ओपन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई लार्ज स्केल बिजनेस वाले ही ओपन कर सकते हैं, स्मॉल बिजनेसमैन भी कर सकते हैं। लेकिन जिनका लार्ज ट्रेडिंग हो, बिग ट्रेडिंग हो, जिनकी कैपिटल ज़्यादा हो, उनके लिए ये वरदान है करंट अकाउंट। तो ये करंट अकाउंट के बिना बिजनेस इनका नामुमकिन है।